Good morning, everyone. This is your Nilofer ma'am. I hope you all are fine at your homes and your study is going well. So, as you all can see that today we will do our worksheet 4. So, before starting the work, let's see what you all have to mention in your copies. So, first of all, you all have to mention today's date in your copies, that is 27 July 2020. And after that, you have to mention online classwork in your copies, and with that you have to mention lesson 10 in your copies. Okay, let's come back to today's worksheet. So as you all know that yesterday I have explained lesson 10 and the name of the lesson is the present tense. I have provided a full explanation video which was in 2 parts. I have explained every topic very thoroughly, each type of tense. So in yesterday's worksheet we have done the definitions and some exercises of lesson 10 that was related to present tense. So today first of all we will do the remaining exercise, and after that we will do the translations that will be related to present tense only. So let's get start today's work. First exercise, change the tense of the given sentences as directed in the brackets. So what you all have to do, you all have to change the tense of the sentences. जो sentences दिए हैं आपको उनके tense change करके उनको दोबारा से लिखना है as directed in the brackets, जैसा कि आपको brackets में बताया गया है कि आपको किस tense में change करना है. So let's see our first sentence. Here it is written, the train arrives at 6 AM. ट्रेन कब आती है? 6 बजे आती है. कैसे पता चला इट इज़ आती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, बिकॉज हेयर इट इज़ रिटन अराइव्स. एस और ई एस, व्हेन वी हैव एडेड एस और ई एस टू द मेन बेस फॉर्म टू द ऑफ द वर्ब, सो दैट टाइम इट बिकम्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. और हमको चेंज किस में करना है? वी हैव टू चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. So as I have explained the formula of perfect tense, present perfect tense, so what we have to do, we have to use has and have as helping verb, and third form of verb which is also called past participle as main verb. So here same, the train has arrived at 6 AM means जो ट्रेन है वो 6 बजे आ चुकी है. So that means आती है, रेगुलर बेस पर आती है, आ चुकी है मीन्स पास्ट में हो चुका है काम. So हमने क्या किया? ट्रेन, द ट्रेन सब्जेक्ट इज सेम and according to the subject we have used has, and then third form of verb which is arrived. Okay, so let's see the next one. Second, it is written, she is preparing for the examination. वो अपनी परीक्षा की तैयारी कर रही है. So here if we have to recognize the tense of a verb, हमको क्या देखना है? हमको verb देखनी है. We have to see the verb. Here it is written is preparing. Is MR we use in present continuous tense, and in main verb we use verb first form plus ing. So हमको किस में चेंज करना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में. So ता है, ती है, ते है, verb first form plus s और es. So what it will become? It will become she prepares for the examination. वो परीक्षा की तैयारी करती है. First sentence is showing that वो परीक्षा की तैयारी कर रही है, continuous, the verb is going on at the time of speaking, and in second sentence it is showing कि वह परीक्षा की तैयारी करती है. So by changing the helping verb and main verb we have changed the tense of the verb. So as I have already explained कि जो tense होता है वो verb का form होता है. verb के form के through हमें time पता चलता है when the action is being completed, when the action has been completed, and when the action will be completed. So let's see the next sentence. Here it is written, Sarita has avoided the road travel for several years. Sarita ने कई सालों तक road travel जो है वो avoid किया है. Okay, so has avoided, has have से पता चल रहा है that it is present perfect tense, and in which tense we have to change? We have to change in present perfect continuous tense. Perfect continuous, that means the verb has started in the past but is still going on at the time of speaking. So how it will change? Let's see. Here it is written, Sarita has been avoiding the road travel for several years. So subject will be same. We have to change the helping verb and main verb. So what is the helping verb of perfect continuous? That is has been and have been. Because Sarita is a singular subject, that's why we have used has been, and what we use as main verb in perfect continuous tense is verb first form plus ing, because continuous भी है ना, so हम continuous की first form ले रहे हैं, sorry main form ले रहे हैं. Avoiding, Sarita has been avoiding the road travel for several years. Sarita कई सालों से road travel avoid कर रही है. Okay, let's see the next one.
Here it is written, does your mother play badminton? क्या तुम्हारी माताजी बैडमिंटन खेलती हैं? ता है, ती है, ते है means present indefinite tense. Do and does is the helping verb of present indefinite tense. In which tense we have to change? We have to change into present continuous tense. Continuous में change करना है, so let's see. So how it will be changed? Let's see. Here we have written, is your mother playing badminton? Because when we are forming an interrogative sentence, so we start the sentence with the helping verb. So your mother is a singular person, that's why we have used is with it. So is your mother playing badminton? Play plus ing, verb first form plus ing, and then in the last we have put question mark. Okay, so let's see the next one. The fifth sentence is, the baby has not been sleeping well. Baby जो है वो अच्छे से नहीं सो रहा है, मतलब पिछले कुछ समय से लेकर अब तक अच्छे से नहीं सो रहा है. Has not been से पता चल रहा है that it is perfect continuous. And in which tense we have to change? We have to change it in present perfect tense. So what is the answer? The baby has not slept well. जो baby है वो अच्छे से नहीं सोया है. So how we have recognized that it has become present perfect tense? Because we have used the helping verb of present perfect tense, that is has or have, because baby हमारा singular है, that's why हमने उसके साथ has का use किया है, and slept is the third form of verb. The baby has not slept well. जो baby है वो अच्छे से नहीं सोया है, it has become present perfect tense. Next is sixth one, have you visited the Taj Mahal? Have यानी it is the helping verb of present perfect tense, visited third form of verb. Okay, so किस में change करना है? We have to change into present indefinite. Present indefinite में change करना है. So as I already told you that do and does is the helping verb of present indefinite tense, which we use in negative and interrogative sentences. So as by the question mark you can see that it is interrogative sentence. तो हम किससे start करेंगे? We'll start with the helping verb. So to choose the helping verb हमको क्या देखना है? First we have to see the subject. Subject is you, that means it is second person, and with you हम किसका use करते हैं? Do का. So that's why we have written, do you visit the Taj Mahal? First form of verb. क्या तुम ताज महल घूमते हो? फर्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज आस्किंग, क्या तुमने ताजमहल घूमा है? एंड वी हैव चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये बता रहा है क्या तुम ताजमहल घूमते हो. आई थिंक द एक्सरसाइज इज क्लियर इन विच आई हैव told you that how you can convert a tense into another tense, okay, by using the helping verb and by using the main verb, because when you will change the helping verb and main verb of a sentence, it will change into another tense. So let's see the next one. Next topic is translation. So translations में हम क्या सीखेंगे? How we can convert a sentence from Hindi to English. So जो उसका grammatical base होता है that is tense, हम उसके formulas सीखेंगे. So let's see the first one. First here it is written present indefinite tense. So present indefinite tense, how can we recognize that it is present indefinite tense? So for that let's see what is the पहचान. वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं. वाक्य के अंत में कैसे शब्द आते हैं? ता है, ती है, ते है. लाइक द सेंटेंसेस टेलिंग राम स्कूल जाता है, हम खाना खाते हैं, सीता गाना गाती है. सो सभी में ता है, ती है, ते है. दैट्स व्हाई इट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. हाउ कैन वी फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? फॉर दैट वी हैव टू लर्न अबाउट द फॉर्मूला. So first when we are learning about the formula, first here it is written affirmative, negative, interrogative and interrogative sentence. Interrogative plus negative sentence. So to know that what is affirmative, negative, interrogative and interrogative plus negative sentence, you all must know one thing, that a sentence is of three types. Like जो sentence होता है वो तीन प्रकार का होता है. Affirmative which tells that the verb is happening, जिससे पता चलता है कि कोई भी क्रिया हो रही है. Second आता है negative which tells that the verb is not happening, जिससे पता चलता है कि कोई भी क्रिया नहीं हो रही है. Then आता है interrogative which tells us that you are asking a question that is the verb is happening. आप इसमें प्रश्न पूछते हैं कि क्या आपकी क्रिया हो रही है. एंड देन आता है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव. इसमें आप ये पूछते हैं कि आपकी क्रिया नहीं हो रही है, क्या तुम. सो लेट्स सी अ एग्जाम्पल ऑफ हिंदी वन, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. एफर्मेटिव आस्क, तुम पढ़ रहे हो. ओके, द वर्ब इज हैपनिंग. निगेटिव आस्क, तुम नहीं पढ़ रहे हो. द वर्ब इज नॉट हैपनिंग. इंट्रोगेटिव आस्क, क्या तुम पढ़ रहे हो, यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया. एंड देन इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव दोनों का मिक्सचर है, सो इट आस्क क्या तुम नहीं पढ़ रहे हो. सो आई थिंक नाउ यू ऑल हैव अंडरस्टूड दैट दीज आर द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज. सो टू फॉर्म ईच टाइप ऑफ सेंटेंस वी हैव टू
see the formula. So let's see the first one. Here it is written affirmative. So affirmative का formula क्या है? Subject. Subject is the most important thing because about in a sentence we talk about a subject only. Then आता है verb first form plus s और es. हम क्या करते हैं? verb की base form के साथ s और es लगाते हैं. Then object and then full stop. Second is negative. We just have to use not and we have to use हेल्पिंग वर्ब बिकॉज हमने एफर्मेटिव में कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं की थी, बट इन नेगेटिव वी विल यूज़ हेल्पिंग वर्ब ऑल्सो, दैट इज डू एंड डज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, देन डू डज, देन नॉट, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट एंड देन फुल स्टॉप. देन इंट्रोगेटिव में क्या होता है? वी स्टार्ट विद द हेल्पिंग वर्ब. जब हमारा जो क्वेश्चन होता है वो किससे स्टार्ट किया जाता है? विद द हेल्पिंग वर्ब. सो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आप डू और डज लगाएंगे, देन आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क. देन नेक्स्ट आता है आपका इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव. सो व्हाट इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव आस्क? इट आस्क दैट क्या आपकी वर्ब नहीं हो रही है. सो सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे. क्वेश्चन वर्ड क्या होता है? क्या, क्यों, कहाँ, कैसे. जब ये आपका बीच में दिया गया होता है क्या, तब हम उसकी इंग्लिश लगाते हैं. उसके बाद आपका डू और डज आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, देन सब्जेक्ट आएगा, देन नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क. So in the whole process you have to understand, in affirmative no helping verb is there, only verb first form plus s or es. In negative helping verb is do or does, and in interrogative helping verb is do or does, and same will happen in interrogative plus negative also. So the formulas will be clear to you when I will explain the formulas according to the sentence. So let's see the examples for it. सो फर्स्ट सेंटेंस, हेयर इट इज़ रिटन, अप्रैल के महीने में तेज़ बारिश नहीं होती है. नहीं मीन्स, दैट मीन्स इट इज़ निगेटिव सेंटेंस. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वेदर, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टाइम, तो हमारा सब्जेक्ट जो होता है दैट इज़ नॉट क्लियर. सो वील स्टार्ट द सेंटेंस विद इट. इफ समवन इज आस्किंग व्हाट इज़ द टाइम, यू गिव आंसर्स दैट इट इज़ 3 o'clock. सो आपने किससे स्टार्ट किया? आपने इट से स्टार्ट किया. सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट वेदर, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट टाइम, आप इट से स्टार्ट करेंगे. यहाँ हम वेदर के बारे में बात कर रहे हैं, बारिश के बारे में, सो विल स्टार्ट विद इट. इट आपका सिंगुलर होता है इसीलिए उसके साथ डज आएगा. निगेटिव है नॉट. रेन मीन्स होता है बारिश होना, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड देन आपका ऑब्जेक्ट आ गया हैविली, तेज़ी से बारिश नहीं होती है इन द मंथ ऑफ अप्रैल. सो आपका सेंटेंस क्या बना? इट डज नॉट रेन हैविली इन द मंथ ऑफ अप्रैल. सेकेंड क्वेश्चन है, क्या तुम्हारा तोता पूरा दिन बोलता रहता है? अब ता है, ती है, दैट मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट है, एंड क्वेश्चन इज ऑल्सो देयर, क्वेश्चन मार्क. सो हमने पहचान लिया दैट इट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस. अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या हमारा स्टार्टिंग में आ रहा है, मिडिल में तो नहीं आ रहा है, दैट्स वाई विल नॉट यूज द इंग्लिश ऑफ क्या. तो हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे. हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करने के लिए फर्स्ट वी हैव टू सी व्हाट इज द सब्जेक्ट. द सब्जेक्ट इज योर पैरट, तुम्हारा तोता मीन्स सिंगुलर है, उसके साथ हम डज लगाएंगे, डज योर पैरट. देन आपका ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, बोलता है, स्पीक, ऑल डे लॉन्ग, पूरा दिन बोलता है. क्या तुम्हारा तोता पूरा दिन बोलता है? सो आपका क्या हुआ? ये हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट वन. हेयर इट इज रिटन, जुलाहे कपड़ा बुनते हैं, मीन्स योर वर्ब इज हैपनिंग, दैट मीन्स इट इज एफर्मेटिव सेंटेंस. सो हाउ वी विल ट्रांसलेट इट? फर्स्ट वी विल यूज सब्जेक्ट. सब्जेक्ट, बुनता कौन है कपड़े? जुलाहे. सो जुलाहे विल बी द सब्जेक्ट, द वीवर्स. अब क्या करते हैं? बुनते हैं, मेन वर्ब क्या है? वेव. एंड देन क्या बुनते हैं? वो बुनते हैं कपड़े. सो ऑब्जेक्ट विल बी क्लोथ्स. अब हमने यहाँ पर वेव ही क्यों यूज़ किया? बिकॉज वेवर्स ऑलरेडी प्लूरल है और प्लूरल के साथ हम एस और एस यूज़ नहीं करते हैं. सो लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस. हियर इट इज़ रिटन, तुम ज़रूरतमंदों की मदद क्यों नहीं करते हो? अब क्यों इज कमिंग इन द मिडिल, हम इसकी इंग्लिश लगाएंगे. इट इज़ अ क्वेश्चन वर्ड. सो फर्स्ट वील राइट द इंग्लिश ऑफ क्यों, दैट इज़ वाई. नाउ अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हम अपना हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे. हमारा सब्जेक्ट है तुम. सो विद यू वी यूज डू, दैट्स वाई वी हैव यूज डू. वाई डू यू नॉट, नॉट आ गया. देन मेन वर्ब हेल्प, द नीडी इज ऑब्जेक्ट. वाई डू यू नॉट हेल्प द नीडी? So now I think by the examples and by the formulas, present indefinite tense are clear to everyone. So let's see our next tense. Next tense is present continuous tense. As your present tense
has 4 forms, that is present indefinite, present continuous, present perfect and present perfect continuous. So today I will explain you present indefinite, which I have explained. Now I am explaining present continuous tense, and then afterwards I will explain you present perfect tense. Perfect continuous tense will not do, because for translation it is not so very necessary. So it is necessary to understand the main type forms. तो हम परफेक्ट तक जानेंगे. सो लेट्स कम बैक टू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज कंटिन्यू? जैसे मैंने आपको बताया कंटिन्यू मीन्स जारी रहना. सो कंटिन्यूस मीन्स आपकी वर्ब जो है बोलते समय भी जारी है. सो हाउ यू कैन रिकॉग्नाइज? पहचान. वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं. मैं खाना खा रहा हूँ, वह स्कूल जा रही है, तुम काम कर रहे हो, हम गाना गा रहे हैं. सो इन एवरी सेंटेंस रहा है, रही है, रहे हैं. ओके, लेट्स सी द फॉर्मूला. सो एफर्मेटिव का फॉर्मूला देखते हैं. सब्जेक्ट, देन हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या रहता है? इज एम आर. अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हम इज एम आर का यूज़ करेंगे. वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस फुल स्टॉप. देन नेगेटिव आता है, नथिंग विल बी चेंज, सेम इट विल बी. सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट इज एम आर. हेल्पिंग वर्ब आप सब्जेक्ट के अनुसार चूज करोगे. इफ आई इज देयर देन एम, इफ वी इज देयर देन आर, इफ शी इज देयर देन इज. देन आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे. देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी एंड देन ऑब्जेक्ट एंड देन फुल स्टॉप. So let's see the next one. It is interrogative. Interrogative, as I already told you, it starts with the helping verb. So is am are according to the subject. Then आपका subject आ जाएगा verb first form plus ing plus object plus question mark. Okay, so let's see the next one, that is interrogative plus negative. So the next is interrogative plus negative. So as I already told you, if question word is given तो हम पहले question word की इंग्लिश लिखेंगे. देन इज एम आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. देन हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा. देन नॉट, वर्ब फॉर्म फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, देन ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क. नाउ दीज फॉर्मूलाज विल बी अ लिटिल कन्फ्यूजिंग इफ यू विल नॉट अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जाम्पल. सो लेट्स सी व्हाट आर द एग्जाम्पल्स. हियर इट इज रिटन, तुम एक राजा के जैसे व्यवहार नहीं कर रहे हो. रहे हो मीन्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. व्हाट इज द सब्जेक्ट? सब्जेक्ट इज यू एंड यू के साथ हम आर लगाते हैं. यू आर. व्हाट इज द वर्ब? व्यवहार करना. व्यवहार करना वी से बिहेव. बिहेव प्लस आई एन जी, बिहेविंग. एंड ऑब्जेक्ट इज किसके जैसे? राजा के जैसे. यू आर बिहेविंग लाइक अ किंग. सो आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज, वह अपने नए सहपाठियों से घुलने मिलने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है? क्यों नहीं कर रहा है, दैट मीन्स इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव. क्यों मीन्स इट इज आस्किंग क्वेश्चन ऑल्सो, एंड नहीं दैट मीन्स निगेटिव ऑल्सो. तो हम क्या करेंगे? क्यू इज कमिंग इन द मिडिल, तो हम सबसे पहले उसकी इंग्लिश लगाएंगे, दैट इज वाई. एंड हमारा सब्जेक्ट क्या है? वह. वह इज द सब्जेक्ट. हम इन इंग्लिश में लिखते हैं ही, तो अकॉर्डिंग टू ही हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा इज. सो क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट ही, नॉट. क्या कर रहे हो? कोशिश करना. वी से इन इंग्लिश ट्राई. ट्राई प्लस आई एन जी, ट्राइंग. एंड ऑब्जेक्ट है सहपाठियों से घुलने मिलने की. टू मिंगल विद हिज न्यू क्लासमेट्स. वाई इज ही नॉट ट्राइंग टू मिंगल विद हिज न्यू क्लासमेट्स? वो अपने नए सहपाठियों से मिलने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है? क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. आकाश में बिजली नहीं चमक रही है. नहीं मीन्स निगेटिव सेंटेंस है. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वेदर, बिजली मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द वेदर. सो वी विल स्टार्ट विद इट. इट के साथ हम इज लगाते हैं. इट इज़ नॉट लाइटनिंग इन द स्काई. लाइट मीन्स होता है बिजली चमकना, एंड आई एन जी लाइटनिंग. सो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. ओके, इट इज़ नॉट लाइटनिंग इन द स्काई. नेक्स्ट इज, वे तुम्हारे कान में क्यों फुसफुसा रहे हैं? क्यों इज कमिंग इन द मिडिल, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. सो हम उसकी इंग्लिश लगाएंगे, दैट इज वाई. देन दे हमारा प्लूरल है. दे के अकॉर्डिंग हम यहाँ आर लगा देंगे. एंड फुसफुसाना वील से विस्पर. एंड आई एन जी विस्परिंग. वाई आर यू विस्परिंग इन योर एयर? वाई आर दे विस्परिंग इन योर एयर? सॉरी, दे. वे तुम्हारे कान में क्यों फुसफुसा रहे हैं? ओके, नाउ इट इज क्लियर टू एवरीवन, आई थिंक. Our next sentence is present perfect tense. Sorry, not sentence, it is tense. Next tense is present perfect tense, which tells that the verb has completed in the past but whose effects are connected to the present. जो verb है वो past में हो चुकी है, लेकिन उसके जो effects हैं वो present से जुड़े हुए हैं. How can we recognize? So let's see. वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, गया है आदि शब्द आते हैं. लाइक मैंने अपना कार्य कर लिया है, उसने ये गाना गा दिया है, हम स्कूल जा चुके हैं,
वह अपना कार्य कर चुकी है. सो इस तरीके के सेंटेंसेस जो होते हैं दैट कम्स अंडर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. सो लेट्स सी द फॉर्मूला. हियर इट इज रिटन ऑफ affirmative वन. सो लेट्स सी. It is written subject plus has have plus verb third form plus object plus full stop. Subject के अकॉर्डिंग हम has और have यानी has have हमारा helping verb होता है वो सिलेक्ट कर लेंगे. मेन वर्ब हमारा होता है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब विच इज ऑल्सो कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल. देन हमारा ऑब्जेक्ट आता है एंड टू क्लोज अ सेंटेंस अ फुल स्टॉप. सो लेट्स सी द नेक्स्ट फॉर्मूला. नेक्स्ट इज निगेटिव. सो वॉट इज द फॉर्मूला. नो चेंज विल बी देयर ओनली आफ्टर हैज़ एंड हैव. हमको नॉट इंसर्ट कर देना है. सेम रहेगा. सब्जेक्ट हैज़ एंड हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप. नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव इन विच वी आस्क क्वेश्चन. तो हम क्या करेंगे, वील स्टार्ट विद द हेल्पिंग वर्ब हैज़ एंड हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. पहले सब्जेक्ट चूज कर लेंगे बिकॉज उसी के अकॉर्डिंग हम अपना हेल्पिंग वर्ब चूज करेंगे. देन सब्जेक्ट, देन वर्ब थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क. ओके. And the next is interrogative plus negative. Interrogative plus negative. तो if the question word यानी क्या क्यों कहाँ आ रहा है आपके सेंटेंस में, क्या इज कमिंग इन द मिडिल. अगर क्या कभी भी मिडिल में आता है तभी हम उसकी इंग्लिश लगाते हैं, अदरवाइज विल नॉट यूज, विल यूज हेल्पिंग वर्ब. ओके. सो क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, देन हैज़ हैव लगाएंगे. सेम फॉर्मूला फॉलो होगा. सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. सो फॉर understanding the formulas well, let's see the examples. Here it is written हैरी फुटबॉल प्रतियोगिता हार गया है. हैरी जो है वो हार गया है. सो हैरी इज द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट इज सिंगुलर तो हमने हैज लगाया. हारना वर्ब है मेन एंड द थर्ड फॉर्म ऑफ लूज इज लॉस्ट. क्या हारा, फुटबॉल चैंपियनशिप. हैरी हैज लॉस्ट द फुटबॉल चैंपियनशिप. हैरी क्या हार गया है, फुटबॉल चैंपियनशिप हार गया है. नेक्स्ट इज उन्होंने अपनी गलती को महसूस क्यों नहीं किया है. सो उन्होंने अपनी गलती को महसूस क्यों नहीं किया है. दैट इज इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव. क्यों पूछा भी है और नहीं भी है. सो क्यों इज कमिंग इन द मिडल. हम पहले उसकी इंग्लिश लगाएंगे. हमारा सब्जेक्ट है उन्होंने, दैट मीन्स दे. इट इज प्लूरल. उसके अकॉर्डिंग हमने हैव लगाया. वाई हैव दे. फिर हमने नॉट लगाया. नॉट रियलाइज्ड. महसूस करना मीन्स रियलाइज्ड देयर मिस्टेक. ऑब्जेक्ट क्या है, उनकी गलती. उन्होंने अपनी गलती महसूस क्यों नहीं की है. वाई हैव दे नॉट रियलाइज देयर मिस्टेक. नेक्स्ट सेंटेंस इज रोहित कॉलेज में नामांकित नहीं हो चुका है. नामांकित मीन्स होता है एनरोल. सो रोहित इज द सब्जेक्ट. रोहित इज सिंगुलर, दैट्स वाई वी हैव यूज्ड हैज. देन हमारा नॉट आ गया बिकॉज निगेटिव सेंटेंस है. मेन वर्ब है एनरोल एंड द थर्ड फॉर्म ऑफ एनरोल इज एनरोल्ड. कहाँ पर एनरोल्ड नहीं हुआ है, कॉलेज में. रोहित हैज नॉट एनरोल्ड इन द कॉलेज. नेक्स्ट सेंटेंस इज क्या अंकिता पहले ही अपनी कक्षा 12 की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुकी है. सो क्या अंकिता, क्या हमारा स्टार्टिंग में आ रहा है, दैट्स वाई हम इसका इंग्लिश नहीं लगाएंगे. वील स्टार्ट विद द हेल्पिंग वर्ब. अंकिता इज अ सिंगुलर वर्ड तो हमने हैज लगाया. हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब है उत्तीर्ण करना मीन्स पास करना. सो थर्ड फॉर्म ऑफ पास इज पास्ड. क्या पास किया है, हर एग्जामिनेशन ऑफ इंटरमीडिएट. ऑब्जेक्ट क्या है, अपनी कक्षा 12 की परीक्षा. सो आपका सेंटेंस हो जाएगा हैज़ अंकिता ऑलरेडी पास्ड हर एग्जामिनेशंस ऑफ इंटरमीडिएट. So that was the examples of present perfect tense. I have explained you present indefinite tense, present continuous tense and present perfect tense. As I have already explained कि perfect continuous tense इतना ज़्यादा important नहीं है for now. We'll discuss it further. Okay. So I hope आप सभी को समझ में आया होगा. Every tense is clear to everyone. The writing must be very neat and clean. Put proper date and every heading which is necessary to mention in your copies. I'll meet you in the another video. So till then, stay safe everyone. Bye bye.